انہیں خیال آیا علی دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنے آقا سے کیا کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا کرتے ہیں۔ تھوڑی سی انون ہو گئی ہے، حضرت علی ادھر بیٹھے، فاطمہ ادھر ہے، دل میں سوچ رہی ہے کیا کروں، چلو اپنے ابا جان سے کہلوا دو، اگر چاہتی تو گھر سے باہر چلی جاتی، مگر فاطمہ کو پتا تھا بی بی پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ فاطمہ کو پتا تھا بی بی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ نے پیمد والی چادر اوڑھی اور علی کی بارگاہ میں آ کر کے کھڑی ہو گئی اور علی سے کہنے لگی، او میرے سرتاج، ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم اپنے ابا جان کے گھر جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، حضرت علی وہیں پہ سر اٹھایا، کہنے لگے فاطمہ ذرا بتا تو دو ابا جان کے گھر کیوں جا رہی ہو؟ سیدہ فاطمہ مسکرا کے کہنے لگی، ارے بی بی تھی دزدیدہ نظروں سے دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے میرے سرتاج، ہم اپنے ابا جان کے گھر جا رہے ہیں تاکہ آپ کی شکایت کریں۔ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ آپ کی شکایت۔ اللہ، بی بی تھی مگر ان کا مقصد وہ شکایت کا نہیں تھا۔ اب سنو، حضرت علی سے جب اتنا کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جیسے ہی آنسو آئے فاطمہ نے دیکھا میرے سرتاج کی آنکھوں میں آنسو۔ آج ہے تمہارے گھر میں میاں بی بی کی زندگی ایسی، باہر سے آئے گا دھنا سیٹ، منہ پہ اتنی گالیاں ہوں گی، ماں کی گالی، بہن کی، دڑا پڑا گالی، بس اسی میں ہے اس کی مردانگی، بی بی کو گالی بکنے میں۔ یہ زندگی اچھے لوگوں کی زندگی ہے ہی نہیں۔ سیدہ فاطمہ نے دیکھا میرے شوہر کی آنکھوں میں آنسو، فاطمہ بیٹھ گئی اور اپنے آنچل سے آنسو پوچھنے لگی، او میرے سرتاج تمہیں میری کون سی بات بری لگ گئی؟ فاطمہ کہنے لگی، او میرے سرتاج ذرا بولو، حضرت علی روتے جا رہے ہیں۔ فاطمہ آنسو پوچھتی جا رہی ہے۔ اب حضرت علی نے کہا، فاطمہ میرے دل میں ایک بات آتی تھی، پتہ نہیں کون سا دل ہوگا، فاطمہ مجھ سے کچھ مانگیں گی، فاطمہ تم نے نمک سے روٹی کھا لی مگر علی سے کچھ طلب نہ کیا، فاطمہ تم نے پیمد لگے کپڑے پہن لیے مگر علی سے کچھ نہ کہا، فاطمہ سوکھی روٹی پہ گزر بسر کر لی مگر علی سے کچھ نہ مانگا، میں چاہتا تھا مجھ سے میری فاطمہ کچھ مانگ لے مگر فاطمہ آج مانگا تو میری شکایت کے لیے مجھ سے اجازت مانگی، اے فاطمہ کیا میرے آقا سے میری شکایت ہوگی؟ میں تو دعا کرتا ہوں مولا نبی کے ناراض ہونے سے پہلے پہلے علی کی موت آ جائے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ نے علی کے منہ پہ ہاتھ رکھا، کانپ جاتی اور منہ پہ ہاتھ رکھنے کے بعد اپنے آنچل کو اٹھاتی اور اٹھانے کے بعد دعا کرتی، اے اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے۔ اللہ فاطمہ کی دعا، حضرت علی سے فاطمہ کہنے لگی، اے علی میرا مقصد یہ نہیں تھا، میرا مقصد
दूं, क्योंकि अली आप मेरे अब्बा जान पर जान कुर्बान करते हैं, इसलिए मैंने सोचा उधर से कहलवा दूं। अली फातिमा ऐसा हरगिज ना करेगी जो मेरे अब्बा जान मेरे शौहर से नाराज हो जाए। अली मुझे माफ कर दो। सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू है। अली बोले फातिमा जाओ, तुमने मुझसे कुछ तो मांगा, मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी, ऐ फातिमा चली जाओ। फातिमा कह रही है नहीं अली नहीं, मेरे सरताज नहीं जा रही हूँ। कहा नहीं नहीं फातिमा तुम्हें जाना पड़ेगा। अब अली ने जब कहा, अली का हुक्म सादिर होने लगा। फातिमा की आंखों में आंसू है, फातिमा चादर ओढ़े हैं। अपने घर की बच्चियों को कपड़ों पे नजर मारना, इसका दुपट्टा कैसा है, इसकी चुटिया कैसी है, इसका पैजामा कुर्ता कैसा है। जरा फातिमा को देखो, नबी की बेटी को देखो, बेमतलबी चादर है मगर जिस्म दिखाई नहीं देता है। फातिमा बजान के घर को चली, बार बार अली की तरफ देख रही है और कह रही है अली माफ कर दो, अली मुझे रोक लो। फातिमा से अली कहने लगे नहीं फातिमा तो जाना होगा। अली घर पे रह गए। फातिमा रोती हुई चली जा रही है, आंखों में आंसू थे। अल्लाह अल्लाह अब्बा जान को पता चला, मेरे आका को पता चला। आज एक बेटी अपने बाप से शौहर की शिकायत करने आ रही है। अगर किसी की ऐसी बेटी हो तो बोलो मेरे नबी को पता चला। जब पता चला अल्लाह अल्लाह नबी ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। सैयदा फातिमा दरवाजे पर आई और जब आकर के देखा तो दरवाजा बंद पाया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और आज तो बाप अपनी बेटी को शय दे रहा, शय दे रहा। घबराइए मत। 15 बीघे जमीन है, 2 बीघे जमीन बेच के वकीलों से झूठा केस लगवा करके उसकी बहन का नाम, घर वालों का नाम, जेल में फंसवाऊंगा। तू मत घबरा। यह है जिंदगी, यह है बाप की मूंछ। बेटी का घर बर्बाद करता। नबी का फरमान तो सुनते चलो प्यारो। जो माँ बाप अगर अपनी बेटी का घर बर्बाद करता, नबी फरमाते हैं उसकी जिंदगी अगर ऐसी गुजर जाए, हश्र के दिन वो मेरे दीदार से महरूम रहे। तौबा तौबा। आज गलत शय दे रहा, गलत। और माँ तो चढ़ा के भेजती है बेटी को, चढ़ा के। तवज्जो। हजरत अली घर पे रह गए, सैयदा फातिमा चली गई। और जब फातिमा पहुंची तो नबी का दरवाजा बंद। आज अब्बा का दरवाजा क्यों बंद है? एक तो उधर अली की तरफ से गमज़दा, आज दरवाजा क्यों बंद? आवाज दी अब्बा जान दरवाजा खोलिए, जवाब नहीं आया। दूसरी मर्तबा फिर का अब्बा जान दरवाजा खोलिए। का कौन है दरवाजे पर? अल्लाह अल्लाह ये कौन कह रहा? मेरे आका कह रहे हैं। वो भी उस बेटी से जिस बेटी के लिए आका खड़े हो जाया करते थे। कह रहे कौन दरवाजे पर? जब इतना सुना अब्बा ने पहचाना नहीं। फातिमा बोली अब्बा जान आपकी लख्ते जिगर नूरे नजर दिल का टुकड़ा फातिमा हूँ। दरवाजा खोलिए। अंदर से आवाज आई कौन लख्ते जिगर, कौन नूरे नजर, कौन
आहट से पहचान लिया करते थे। आज मेरे साथ क्या हो रहा है? आज मेरे अब्बा कह रहे कौन बेटी कौन फातिमा। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, मेरे नबी की शहजादी, सैयदों की दादी, हसनैन करीमैन की अम्मी जान सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू, रो करके कह रही है बजान दरवाजा खोलिए, मैं हसन की माँ फातिमा हूँ। मेरे नबी ने अंदर से कहा कौन हसन कौन फातिमा? अल्लाह हसन को नहीं पहचान रहे। जरा देखो तो गोद में हसन हुसैन है, चादर ओढ़े हुए हैं। एक सहाबी ने पूछा आका चादर के अंदर क्या है? मेरे नबी ने चादर हटाई और फरमाने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा वअहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। नबी ने फरमाया ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, मेरे मौला तू भी मोहब्बत करना, और जो इनसे मोहब्बत करे मौला उनसे तू भी मोहब्बत करते रहना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तुम कह रही है ऐ अब्बा अब्बा जान मैं हसन की माँ फातिमा हूँ, दरवाजा खोलिए। नबी बोले कौन हसन कौन फातिमा? जैसे जानते ही ना हो। आज मैं उन बापों को ये सबक दे के जाऊंगा। सैयद रिजवान मियां ने अहले बैत अतार के ताल्लुक से ये प्रोग्राम रखा है। अगर तुम्हें मोहब्बत है तो सुनो, उस बाप से कह के जाऊंगा जो अपने दामाद की शिकायत सुनते हैं कैसे शुरू कर देते हैं। लड़ाइयां होने लगती है, बेटी का घर बर्बाद होता है। नबी की बेटी से अच्छी हमारी तुम्हारी बेटी नहीं है। दरवाजे पे खड़ी है, कह रही है अब्बा जान हसन की माँ फातिमा हूँ। नबी बोले कौन हसन कौन फातिमा? अंदर से आवाज आ रही है, लेकिन आवाज लड़खड़ाती हुई है। फातिमा बेकरार हो गई और रो करके कहने लगी अब्बा जान हुसैन की माँ फातिमा हूँ। मालूम था मेरे अब्बा हुसैन से बहुत मोहब्बत करते हैं। कहते हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूँ। जो हुसैन का दोस्त मेरा दोस्त, जो हुसैन का दुश्मन मेरा दुश्मन। बेटी कह रही है अब्बा जान हुसैन की माँ फातिमा हूँ। जब इतना सुना नबी बोले कौन हुसैन कौन फातिमा? अरे आज कह रहे कौन हुसैन? जरा गौर करो, मेरे नबी सजदे में है, नमाज पढ़ रहे हैं। हुसैन आके पीठ पे बैठ गए, नबी नमाज पढ़ रहे हैं। हुसैन पीठ पे है, हुसैन उतर नहीं रहे हैं। नबी सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं, कहीं हुसैन गिर ना जाए। और आज कह रहे कौन हुसैन कौन फातिमा? मेरे नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे हैं। हुसैन हुजरे फातिमा से निकले, पाँव से टकरा गया, हुसैन गिर जाते हैं। नबी ने खुतबा रोक दिया, मिंबर शरीफ से जुमे के दिन खुतबा रोक दिया और उतर के आ गए, उठा करके चूमने लगे। मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह अल्लाह। और आज कह रहे कौन हुसैन कौन फातिमा? फातिमा रो रो के कह रही
है, अब्बा जान मैं हुसैन की माँ फातिमा हूँ। फातिमा, उधर मेरे नबी भी अंदर क्या हाल होता होगा। अरे जब फातिमा घर आती थी आका के ना, तो कौन बाप ऐसा होगा जो अपनी बेटी के लिए खड़ा हो जाता होगा। वो मेरे आका खड़े होते थे, सीने से लगा के कहते थे बेटी तू मेरा दिल का टुकड़ा है, जिगर है। फातिमा, दुनिया को राहत सुकून मिलता है तेरे बाप से, मगर फातिमा तेरे बाप को सुकून मिलता है उसकी बेटी फातिमा से। और आज दरवाजे पे खड़ी है, कह रहे कौन हुसैन कौन फातिमा। अल्लाह अल्लाह, फातिमा की सिसकियां हिचकियां बढ़ गई। और उधर हजरत अली घर पे, उधर हजरत अली घर पे। और अपनी अनबन जहन में रखना, अपने बच्चों की जिंदगी जहन में रखना। ये 10-10 साल के बच्चे जो 10 रुपए कमाने के लायक नहीं है, 10,000 का मोबाइल रखे, इनकी जिंदगी में आग मत लगाओ। इन्हें पढ़ाओ या फिर कोई काम सिखाओ, इन्हें आवारा मत बनाओ। सैयदा फातिमा कह रही अब्बा जान मैं हुसैन की माँ फातिमा। अरे कौन हुसैन? दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, प्यार से बोलो या हुसैन। या हुसैन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। और तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। फातिमा खड़ी है, दरवाजे पे खड़ी है और कह रही अब्बा जान मैं हुसैन की माँ फातिमा बोल रही हूँ। नबी बोले कौन हुसैन कौन फातिमा। अल्लाह अल्लाह अब रो करके कहने लगी अब्बा जान मैं खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा बोल रही हूँ। नबी बोले कौन खदीजा कौन फातिमा। अब जब रुका नहीं गया, बेकरारी बढ़ गई। अब आखिर में फातिमा कहने लगी अब्बा जान मैं अली की बीबी फातिमा बोल रही हूँ। अंदर से आवाज आई अगर अली की बीबी फातिमा है तो पहले अली से जाकर के माफी मांगे। अगर अली राजी है तो उनके बाप का दरवाजा खुलेगा। हैं आज के बाप ऐसे? तुम्हें क्या पता ये लम्हे क्या होते हैं। तुमने तो बिठा लिया जवान बेटी को, पूरी जिंदगी उसकी ऐसी गुजर गई। तुम तो अपने आराम से खाते पीते सन्नाते घूमते फिर रहे हो। महीने में कचहरी चले गए, थाने में इतने पैसे दिए उतने पैसे दिए, लड़ाई झगड़े पंचायत उसकी उस बाप से और जिस भाई की चलती है घर में उससे इस बेटी इस बहन के एक एक लम्हे का हिसाब लिया जाएगा। एक एक लम्हे का हिसाब। अल्लाह अल्लाह, सैयदा फातिमा रोती हुई वापस आ गई। बाप ने दरवाजा नहीं खोला, चली आई, सीधे चली आ रही अली के दरवाजे पर आ गई। क्या मंजर था। अली घर में रो रहे थे, फातिमा रोती हुई आ गई। मेरे नबी अपने घर में रो रहे हैं। सैयदा फातिमा हजरत अली के पास आ गई और आकर के कहने
जिंदगी मेरे सरताज बर्बाद हो गई। आज अब्बा जान ने दरवाजा न खोला, अपनी बेटी के लिए दरवाजा बंद हो गया। सरताज तुम्हें माफी दे दो। अपना चल अली के कदमों पे रख दिया। मेरे अली ने लात नहीं मारी, अली ने गालियां नहीं दी। ओ अपनी बीबियों को गाली देने वालों, अपनी बीबियों को मारने वालों सुनो, मेरे अली के कदमों पे आंचल फातिमा का है और फातिमा कह रही है अली तुम्हें माफी दे दो। लेकिन जब अली ने देखा फातिमा के मोढ़े पकड़े और उठा करके सीने से लगा लिया और कहने लगे फातिमा तुम्हारा मकाम वो नहीं है, अली का दिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जिंदगी अपने घरों में लाओ, जिंदगी अपने घरों में लाओ। मेरे नबी ने अब दरवाजा खोला, जहां फातिमा थी वहां रोए और सीधे अपनी बेटी के घर चले आए। इतना रोए, आंखों से आंसू, दाढ़ी से के पैराहन भीग गए। मेरे नबी सीधे फातिमा के घर आ गए। अल्लाह दरवाजे पे खड़े होके बोले क्या ये मेरी बेटी फातिमा का घर है? जो जुमले फातिमा बोल रही थी अब नबी पलट रहे। क्या ये हसन की माँ फातिमा का घर है? क्या ये हुसैन की माँ फातिमा का घर है? क्या ये खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा का घर? फातिमा के कानों में आवाज गई, दिल लरस गया, मेरे अब्बा जान आ गया, मेरे अब्बा जान आ गया। हजरत अली से कहने लगी अली 2 मिनट के लिए हाथ खोल दो, 2 मिनट के लिए। हजरत अली ने भी सुना आका आ गया। हजरत अली ने अपनी बाएं खोली, फातिमा आ गई, अब्बा के चेहरे को देख रही है। इतनी लाडली बेटी, इतनी लाडली बेटी कप कपाने लग गई। मेरे नबी भी रो रहे, आंखों में आंसू, पैराल भी गए। अली भी आगे बढ़े, फातिमा करके अपने अब्बा जान के गले में हाथ डाल के सीने पे सर रख के इतना रोई। आखिर लाडली बेटी थी, लाडली बेटी। ऐ अब्बा जान आपने दरवाजा अपनी बेटी को पहचाना नहीं था? मेरे नबी सर पे हाथ फिरा रहे, कह रहे बेटी बस आगे मत कहो, तुम्हारा अब्बा तो अपनी फातिमा को आहट से पहचान लेता है। का पहचान फिर दरवाजा क्यों नहीं खोला? अली फरमाते करीब था अब्बा या फिर बेटी गिर जाती, मैंने दोनों को संभाला, पानी पिलाया। दरवाजा क्यों नहीं खोला? क्या मुझे दरवाजे पे नहीं देखा था? मेरे नबी ने फरमाया बेटी मैं तुम्हें पहचान तो रहा था, मगर मैं आज ये देख रहा था कि मेरी बेटी मेरे दरवाजे पे नहीं खड़ी है, बल्कि क़यामत तक के मुसलमानों की बेटियां अपने बाप के दरवाजे पर खड़ी हैं। अगर आज मैं अपनी बेटी के लिए दरवाजा खोल देता तो हमेशा हमेशा के लिए शिकायत का दरवाजा खुल जाता। अल्लाह, ये है बाप और ये है बेटी। क्या जिगरा था यार, तुम्हारा ख्याल रखते थे। और तुम ईमानदारी से बताओ, अपने सीने पे हाथ रख के बताओ तुम कितना ख्याल रखते हो। हम शहादतें सुनते हैं हुसैन पाक का और सब लोगों का जिक्र सुनते हैं। क्या मेरे नबी को पता नहीं था कि मेरा बेटा हुसैन शहीद होगा? बोलो पता नहीं था क्या?
मेरे नबी को एक एक चीज का पता था, कौन कौन शहीद होगा, और ये भी पता था कि कहां कहां शहादत होगी। अरे वो आका जिसकी दुआओं से सब कुछ हो सकता, तो फिर उन्होंने अपने बेटे के लिए दुआ क्यों नहीं की? ऐ अल्लाह मेरे बेटे को शहादत से बचा दे, जालिमों के चुंगल से बचा दे। क्यों दुआ नहीं की? इसलिए दुआ नहीं की, उन्हें पता था। बाप को भी पता रहता मेरा बेटा 5वां क्लास पास करेगा तभी 6ठे क्लास में आएगा। एक तरफ ये खुशी थी कि सबसे बड़ी कुर्बानी जो इम्तिहान लिया जा रहा वो मेरे बेटे हुसैन का होगा, तो फातिमा भी यही दुआ करती थी मेरे बेटे को कामयाबी देना। अली भी यही दुआ करते थे मेरे बेटे को कामयाबी देना। नबी भी यही दुआ करते थे कि मेरे नवासे को कामयाबी दो। तो उनकी दुआ कैसे रद्द हो जाती? अल्लाह अल्लाह, आज अगर हमारे पास 2 पैसे आ जाए, 4 पैसे आ जाए, इतराने लगते हैं। छूटते कहता घर में कहीं भी मिट्टी नहीं है, टाइल्स ही टाइल्स लगी पड़ी है हर जगह।